Good morning, students. Chapter number 7 coordinate geometry is going on, and in our previous classes we had studied the derivations of distance formula and section formula as well as their application, how to apply them in questions. Okay, now our next concept of this chapter is the derivation of area of triangle formula. Okay, how to derive area of triangle formula. You all know that area of triangle is half base into height, but here we are solving this chapter coordinate geometry in which three coordinates are given. Base and height will not be given to you. That means if three coordinates are given, then how can we apply area of triangle formula? Okay. So proceeding further, I have already made Cartesian plane. Three non-collinear points A, B and C are given. Label them as A. Let coordinate A be x1, y1. Coordinates B x2, y2 and coordinates C be x3, y3. 10th क्लास इट इज अप टू यू. मैंने ये माना है ए को x1 y1 माना है, आपकी मर्जी. आप बी वाले को भी x1 y1 मान सकते हैं. यहाँ पे कोई बाउंडेशंस नहीं है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट शुड ऑलवेज बी x1 y1, सेकंड शुड बी x2 y2. ये बाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ किसमें है? सेक्शन फॉर्मूला में है कि किसी लाइन सेगमेंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 ही होगा और लास्ट कोऑर्डिनेट x2 y2 ही होगा. ना तो ये बाउंडेशन डिस्टेंस फॉर्मूला में है, ना ही ये बाउंडेशन मिड पॉइंट फॉर्मूला में है और ना ही ये बाउंडेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला में. ये चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला में आपको ध्यान रखना है. सो आई हैव लेबल्ड देम. ओके, ऑल दीस थ्री कोऑर्डिनेट्स आई हैव लेबल्ड. अब देखिए हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको स्टेप्स ध्यान रखने पड़ेंगे. प्लीज बी वेरी अटेंटिव क्योंकि यहाँ तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं. कहीं पे भी गलती से x3 की जगह x1 लिख दिया है, कुछ भी लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. सो हियर आई एम टेलिंग यू हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ BD, AE and CF perpendiculars on x-axis. Okay, we have to draw BD, AE and CF perpendiculars on x-axis. हमने तीन perpendiculars डाल दिए x-axis पे. Now again that same concept which we have followed in previous two derivations. It is x2, then coordinate this D is also x2. ये x1 है तो ये coordinate T का क्या हो गया x1 और ये x3 है तो ये क्या हो गया x3. Got it? देखिए ये B y2 है यहाँ, तो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये coordinate आ गया y2. ये y3 है तो यहाँ पे ये coordinate आ गया y3 और ये y1 है तो ये पूरा coordinate यहाँ पे ये आ गया y1. Now can you tell me which figure is ABDE? ये जो ABDE, let me shade it. ये फिगर क्या बनी पूरी? ABDE. Can we say that ABDE is a trapezium? Because trapezium is a quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel. Only it is required that one pair of opposite side should be parallel. How can we say BD and AE are parallel to each other? Because we have drawn perpendiculars. So these are forming corresponding angles. If corresponding angles are equal, the lines are parallel. So we can conclude that ABDE is a trapezium. AEFC is also a trapezium because here also AE is parallel to CF as we have drawn perpendiculars. Am I right? Let me shade it also. This figure ACFE. It is also a trapezium. So in these steps you will have to write. So BD is parallel to AE is parallel to CF as corresponding angles are equal. So यहाँ से हम conclude करेंगे therefore ABDE AEFC and दो तो मैंने आपको बता दिया ट्रेपेजियम ABDE, second AEFC. These two are trapezium. Now what can you say about BDFC? ये क्या है? BDFC. Isn't it a trapezium? Because here also BD is parallel to CF because we have drawn perpendiculars on x-axis. So I have written and BD FC are trapeziums.
These are trapeziums. ABDE I have shaded already. Second AEFC, this also I have shaded, and BDFC, these are trapezium. Now see I am also shading this BDFC. एक बार shaded already है क्योंकि ये इन पूरे trapeziums में ये आ रहा है. Again if I will shade it तो ये double shaded portion हो जाएगा, right? Now please थोड़ा दिमाग लगाइए. Area of trapezium ABDE plus area of trapezium AEFC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BDFC अगर हम करते हैं तो व्हाट विल बी द रिमेनिंग पोर्शन. इन दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को ऐड करके अगर हम BDFC थर्ड ट्रेपेजियम के एरिया को डिडक्ट करते हैं देन कांट वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. हमें नहीं मिल रहा क्या? बिल्कुल मिल रहा है. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिए, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट. रिमेंबर्ड और नॉट? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड का सम मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब हाइट क्या होगी? यहाँ पे 90 डिग्री ये है तो ABDE इस ट्रेपेजियम के हाइट ये होगी. अब हाइट ये होगी तो D कितना निकल सकता है? निकाल सकते हो आप. ऑलरेडी 2-3 बार कर चुके हैं ये कंसेप्ट. D कैसे निकलेगा? ये पूरा OE कितना है? x1. ये पूरा कितना है? x1. और OD कितना है? x2. अब बताइए मुझे DE कितना होगा? x1 minus x2. राइट. इन द सेम वे हाउ कैन यू फाइंड आउट EF? EF फाइंड कीजिए. F कोऑर्डिनेट क्या है? x3. ये पूरा कितना है? x3. और OE ये पूरा कितना है यहाँ तक? x1. तो बताइए मुझे EF कितना होगा? EF हो जाएगा x3 minus x1. एंड इन द सेम वे अगर मैं पूछूं बताइए कि DF, ये DF कितना है? तो DF कितना आएगा? पूरे OF में से अगर आप OD माइनस कर देते हैं तो यानी कि आपको ये DF मिल जाएगा x3 minus x2. सो इन दिस आपको तीनों ही ट्रेपेजियम्स के परपेंडिकुलर मिल गए. पैरेलल ट्रेपेजियम ABDE का परपेंडिकुलर आ गया x1 minus x2. सेकंड ट्रेपेजियम AEFC का हाइट परपेंडिकुलर आ गया x3 minus x1. और थर्ड ट्रेपेजियम BDFC का परपेंडिकुलर पूरा DF आ गया x3 minus x2. ठीक है, अलग से मेंशन कर लीजिए अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे. हम लिख देते हैं DE is equal to x1 minus x2, EF is equal to x3 minus x1 and DF is equal to x3 minus x2. ये तो हुई बात परपेंडिकुलर्स की. Now what about length of these sides? जो ये सम ऑफ पैरेलल साइड पूछ रहे हैं तो इनकी लेंथ तो पता होनी चाहिए. ये भी आपको बता दें कि BD कितना है? BD है ये, BD is y2. AE कितना है? AE ये पूरा AE यहाँ तक ये पूरा कितना है? y1. तो AE आपको मिल गया y1. एंड इन द सेम वे CF कितना है? CF कितना है? y3. तो CF मिल गया y3. इस तरीके से देखिए टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या सारी चीजें आपको मिल चुकी है. हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स है, तीनों साइड्स है पैरेलल, और हाइट आपने तीनों की निकाल ली इस तरीके से. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझ में आई ये चीज? इतनी ध्यान से देखिए, वापस से देखिए इसको. कोई प्रॉब्लम हो तो समझिएगा इसको, कोशिश करना वापस समझ में आए. सो नाउ कैन वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDE plus area of trapezium AEFC minus area of trapezium BDFC. ये चीज आई समझ में? ABC ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए इन दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को ऐड किया, उसमें से BDFC ट्रेपेजियम का एरिया डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया तो ये रिमेनिंग बच जाएगा आपके पास. गॉट इट? नाउ कीप वैल्यूज. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. अब देखिए ट्रेपेजियम ABDE को देखिए, ABDE पैरेलल साइड्स आर BD प्लस AE इंटू हाइट कितनी है? हाइट इज DE.
ध्यान से देखिए, पहले ये साइड लिखे ना, आप कंफ्यूज ना हो, डायरेक्टली वैल्यू पुट करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। इन ट्रेपेजियम ए बी डी ई पैरेलल साइड्स आर बी डी एंड ए ई एंड हाइट इज डी। सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड ट्रेपेजियम ए ई एफ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ sum of parallel sides. Parallel sides are AE plus CF. AE plus CF multiply by height. Height कितनी है इसमें? EF. Height is EF. Minus third trapezium, area of trapezium BDFC. Half of sum of parallel side. BDFC parallel side कौन सी आ रही है? BD plus CF. Into height कितनी आ रही है? BF. Height is DF. ठीक है, आपने साइड्स के बेसिस पे सारी वैल्यूज रख ली, अब आप इनकी वैल्यूज रख लीजिए। सो बिफोर कीपिंग वैल्यू आप एक चीज देखिए कि तीनों टर्म्स में तीन टर्म्स आ गई, फर्स्ट टर्म ये आ गई, सेकंड ये आ गई, थर्ड टर्म ये आ गई। तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कैन वी टेक हाफ कॉमन? हमने हाफ कॉमन लिया तो अपना इनकम हम हो गया, बार बार हाफ लगाने की जरूरत नहीं, हाफ अपने थ्रू आउट कॉमन निकाल लिया। नाउ कीप वैल्यू BD will be replaced by y2 plus AE is y1 multiplied by DE. DE is x1 minus x2. ये वैल्यूज प्लीज ध्यान से रखिएगा क्योंकि यहाँ आप लोगों ने गड़बड़ कर दी तो अपना जो फॉर्मूला डेराइव होगा वो गलत डेराइव होगा। प्लस AE is y1 plus CF is y3 multiplied by EF. EF is x3 minus x1 minus BD y2 plus CF y3 multiplied by DF. DF is x3 minus x2. एक बार चेक कर लीजिए वैल्यूज रखने में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। BD y2 AE y1 DE x1 minus x2 AE y1 CF y3 into EF x3 minus x1 BD y2 CF y3 DF x3 minus x2, right? Now area of triangle ABC is equal to half of, now solve it, multiply them, x1 multiplied by y2 x1 y2 plus x1 y1 minus x2 y2 minus x2 y1 plus x3 y1 plus x3 y3 minus x1 y1 minus x1 y3। अब ये नेगेटिव साइन है सो कीप माइनस साइन एंड कीप ब्रैकेट। अगर दो स्टेप एक साथ करोगे तो मिस्टेक कर दोगे, माइनस रखना, पहले मल्टीप्लाई करना, नेक्स्ट स्टेप में वी विल ओपन दिस ब्रैकेट। ओके, x3 y2 plus x3 y3 minus x2 y2 minus x2 y3 सबको मल्टीप्लाई कर दिया आपने। मल्टीप्लिकेशन इजी है, आपको आती है, बस मैं फिर बोल रही हूँ बी कंसंट्रेटेड हियर कि वाइल मल्टीप्लाइंग x1 y2 आप x1 y2 सही लिख रहे हो, यहाँ पे लिखने में आपने गड़बड़ कर दी तो आंसर रॉन्ग आएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ, नाउ वंस कीप ऑल दीस टर्म्स सेम ओनली ताकि हमें ब्रैकेट ओपन कर लें, फिर जो कटेगी टर्म्स फिर हम काटेंगे। ओके, ये आ गया x1 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1 plus x3 y1 plus x3 y3 minus x1 y1 minus x1 y3. After opening the bracket, all the signs will change. ये आ गया minus x3 y2 minus x3 y3 plus x2 y2 and plus x2 y3. अब देखिए कुछ टर्म्स कट रही होंगी। See, x1 y1 positive, x1 y1 negative. It will be cancelled out. x2 y2 negative, x2 y2 positive, it will also be cancelled out. x3 y3 positive and x3 y3 negative. ये 1 1 2 2 3 3 वाले टर्म्स कट जाएंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3. Now 6 terms will be remaining, 1 2 3 4 5 6, correct. Now see, area of triangle ABC is equal to half of, अब एक पैटर्न में वैल्यू रखना, पहले x1 वाले टर्म रख लो, x1 y2
x1/2। अब x1 वाली एक टर्म और होगी, वो देखिए x1/3 माइनस x1/3। x1 वाली दोनों टर्म्स रख लिया आपने, अब और कोई टर्म x1 वाली नहीं है। पॉजिटिव टर्म पहले रखिए, नेगेटिव टर्म बाद में रखिए। ऐसे ही अब x2 वाली टर्म देखो, पहले पॉजिटिव टर्म रखेंगे प्लस x2/3। अब x2 वाली एक टर्म और होगी माइनस x2/1। और ऐसे ही अब देखिए x3 वाली टर्म, ये नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव वाले रखेंगे, ये आगे पहले प्लस x3/1 माइनस x3/2। इन टर्म्स रखने में कोई दिक्कत नहीं, पहले x1 वाली टर्म रख ली दोनों, फिर x2 वाली, फिर x3 वाली, ठीक है। पहले पॉजिटिव टर्म रखी, फिर नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to half of, can we take x1 common from these two terms? x1 is common, what will remain inside? y2 minus y3। यहाँ पे x2 कॉमन है, what will remain inside? y3 minus y1। and in these two terms x3 is common, what will remain inside? y1 minus y2। it is area of triangle formula, area of triangle is half of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। देखिए जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, लेकिन एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ब्रैकेट के बाहर x1 x2 x3 आ रहा है और ब्रैकेट के अंदर y वाली टर्म्स आ रही है। x1 अगर ब्रैकेट के बाहर आ रहा है तो व्हाट विल रिमेन इनसाइड? x1 बाहर आ रहा है तो y2 minus y3, 1 बाहर है 2 3, काउंटिंग देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं भी हो रहा तो इस पैटर्न वाइज आप याद रख सकते हो। x वाली टर्म बाहर है, y वाली टर्म अंदर है। x1 into 1 के बाद क्या आता है 2, तो ब्रैकेट में आएगा y2 minus y3 प्लस x2, 2 के बाद क्या आएगा 3, y3 minus y1, देन प्लस x3, 3 के बाद क्या आएगा 4 नहीं आएगा बिकॉज तीन ही कोऑर्डिनेट्स हैं, ट्रायंगल के तीन ही कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जब x3 आया तो क्या आएगा y1 minus y2। कंटिन्यूएशन में आएंगी, आप आराम से लर्न कर सकते हैं। सो इट इज डेरिवेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला 10th क्लास। अभी तक कोई भी डेरिवेशन कभी भी एग्जाम में नहीं आया है, बट ऑल दीज डेरिवेशंस आर गिवन टू यू इन योर एनसीईआरटी बुक। तो एग्जाम में आ सकता है, हम ये नहीं बोल सकते कभी नहीं आया तो अभी भी नहीं आएगा। कोरोना में कभी भी नहीं आया था लेकिन इस बार आया, तो अपनों को रिस्क नहीं लेना है। ये सारे डेरिवेशंस आपको अच्छे से समझने हैं, आप ट्राई कीजिएगा, आपको आ जाएगा। बस ये वैल्यूज अगर आप ध्यान से रख लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन में पहले से ही मेंशन कर लीजिए, सारी चीजें अलग से लिख लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का डेरिवेशन आपको मैंने आज बताया क्लास में। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी हाउ टू अप्लाई इट इन क्वेश्चंस। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक आपको मैं और बताऊंगी। सो बाय दैट टाइम प्लीज डू इट योरसेल्फ, इसको कीजिएगा। थैंक यू।